Dear students, today we are going to read the lesson Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Chand. Lost Spring is a fascinating and revelatory description of the lives of underprivileged children in India. It escapes from being a dry report about child labor because of its evocative language. It is about children coming to cities to work as rag pickers or cleaners, servers at tea stalls, or helping at furnaces which they are exposed to health hazards. The story Lost Spring, written by Anis Jung, revolves around the pitiable condition of poor children who are forced to live in slums and work hard in very dirty conditions. The story is divided into two parts. The first part tells the writer's impressions about the life of poor rag pickers who have migrated from Bangladesh but are now settled in the Simapuri area of Delhi. The second part narrates the miserable life of the Bengal makers in the town of Firozabad. The story talks about the miserable life of the two children whose spring childhood is lost in misery and poverty. The chapter Lost Spring is divided into two parts, and both of the parts depicts the plight of street children who are forced into labor in their early childhood. The theme of the chapter is poverty and how the poor children are condemned to a life of exploitation, which results in the loss of childhood, innocence, education, and play. About the author, Anis Jung was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. Description of story, part 1. The first encounter is with the rag picker boy named Sahib Alam, who migrated from Bangladesh in 1971 and lives in Simapuri in Delhi. These rag picker children look for valuable in the garbage, things like a coin or torn shoes, which are as precious as gold for them. They could hardly manage some food for themselves. Other things like identity, education, shoes, and sports are their unfulfilled dreams. Their parents scrounge the garbage searching for things which help them survive, afford food, clothing, and shelter for the family. The children hunted through the garbage heaps looking for things which could partially fulfill their unfulfilled dreams. One day, the writer saw the boy holding a steel can going towards the milk booth. He had got a job at a tea stall. He was happy that he would get 800 rupees and all the meals. The writer noticed that Sahib had lost the freedom of being his own master, which he had enjoyed as a rag picker. Sometimes I find a rupee in the garbage. This is a story. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहब से पूछा, जिससे मेरा आमना सामना डेली सुबह होती थी, जो कचरे के ढेर में कचरा खंगाल रहा होता था, स्क्राउंज कर रहा होता था. साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहब अपना घर बहुत पहले छोड़ के आ गया था. सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के हरी भरी वादियों के बीच में स्थित था. हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी. उसके घर की यादें तो अब दूर दूर तक कहीं उसकी यादों में नहीं थी. देयर वेर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स. कई तूफान आए जो उसके खेतों को, घर को बहा ले गए.
हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और यही कारण है कि वो बड़े शहर में आकर के कचरे में सोना ढूंढ रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, वो धीमे से कहता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। लुकिंग अवे, दूर अब देखते हुए, गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, मैंने उससे कहा स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत मुझे एहसास हुआ कि कितनी सतही बात, जिसका कोई मकसद नहीं है जो मैं सलाह इसको दे रही हूं। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन, जब वो एक बनाएंगे, आई विल गो, मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने मजाक करते हुए से कहा, अगर मैं एक स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज, स्माइलिंग ब्रॉडली, मुस्कुराते हुए कहता हाँ। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ दिनों के बाद मैंने देखा वो मुझे देख के वो दौड़ता हुआ आया। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने कहा रे स्कूल बनाने में समय लगता है। एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और एक ऐसा वायदा मैंने उससे किया था जो करने का मेरा कोई बिल्कुल मकसद नहीं था। मैं इससे एम्बैरेस हुई, शर्मसार हुई। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे ही वायदे उसकी जो अंधेरी दुनिया में, ऐसे तमाम वायदे लोग उस करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, एक महीने की जानकारी के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने कहा साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे नहीं, अपने नाम का मतलब नहीं पता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसके नाम का इस मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे विश्वास करने में बहुत ज्यादा समय लगता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसके नाम का क्या मतलब है इससे अनजान होते हुए, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो शहर की सड़कों पर खाक छानता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बिना चप्पल जूतों के चलने वाली एक पूरी सेना, फौज ही है उसके दोस्तों की। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो पक्षियों के साथ साथ सुबह की जैसे पक्षी आते हैं चहचहाने लगते हैं, उसी तरह से ये आ जाते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर बाद गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और एक महीने के बाद तो अब मैं इनमें से सबको पहचानने लगी थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, मैंने पूछा कि तुम लोगों ने चप्पलें क्यों नहीं पहनी? आई आस्क, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ सेल्फ पर से उतारती नहीं। ही आंसर सिंपली, वो साधारण जवाब देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, एक दूसरे बच्चे ने जिसने जूते पहन रखे थे जो मैच नहीं कर रहे थे, उसने कहा अरे वो उतार भी देगी तो ये फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing, और जब मैं इस पर कुछ कहती हूँ तो वो अपने पैरों को केवल हिलाता है, कुछ कहता नहीं। I want shoes, says a third boy, तीसरा बच्चा कहता मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसने पूरे जीवन में जूते नहीं पहने। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, और पूरे देश में घूमते हुए मैंने देखा है बच्चों को नंगे पांव चलते हुए शहरों में, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, पैसों की कमी के कारण नहीं बल्कि एक परंपरा है नंगे पैर चलने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये इसका जवाब हो सकता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या एक केवल एक बहाना है समझाने का जो इनकी गरीबी का एक जो स्थिति है, जो कारण है, मैं समझती हूँ कि एक बहाना मात्र है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक उडीपी के व्यक्ति की एक कहानी याद आती है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, युवापन में वो अपने स्कूल जब जाता था
तो एक पुजारी के घर के पास से होकर गुजरता था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes, और वहाँ टेम्पल के सामने वो रुक जाता था और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and the temple, और 30 वर्ष के बाद जब मैं उसके शहर में गई और उस मंदिर में, which was now drowned in an air of desolation, जो अब एकांत की स्थिति में, उसके पीछे where lived the new priest, जहां पर नए पुजारी रहते थे, there were red and white plastic chairs, वहां पर लाल और सफेद रंगों की प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, एक युवा बच्चा ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए, सॉक्स पहने हुए, शूज पहने हुए, राइट पैंटिंग हाँपते हुए आया एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पे अपने बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, उस बच्चे को देखकर मुझे याद आई कि दूसरे बच्चे ने जो देवी से प्रार्थना की थी जूतों के लिए। When he had finally got a pair of shoes, जब उसे एक जोड़ी जूते का मिल गया था। Let me never lose them, इसे कभी नहीं खोना है। The goddess had granted his prayer, देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। Young boys like the son of the priest now wore shoes, अब पुजारी के बच्चे, युवा बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो जूते पहनते हैं। But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो कचरा बीनने का काम करते हैं मेरे पड़ोस में, वो अभी भी बिना जूतों के ही रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी, और मेरा जो आमना सामना इन नंगे पैर चलने वाले कचरा बीनने वालों से हुआ था, जिस कारण मैं सीमापुरी गई। A place on the periphery of Delhi, at miles away from it, जो दिल्ली सीमा के बाउंड्री के पास ही है, बाउंड्री में ही है, लेकिन कहें तो वो यहाँ से बहुत दूर लगता है, क्योंकि इससे कोई मैच नहीं करता वो इलाका दिल्ली से, इसकी तरक्की से। और those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971, यहाँ जो लोग रहते हैं वो बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं, और वो जो सन 1971 में आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी तब जंगल एक हुआ करता था। इज स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरापोलिन, मिट्टी के स्ट्रक्चर्स में बने हुए मकान जिस पर टीन के छत, टेरापोलिन के छत, डिवाइड ऑफ सीवेज, को सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं, ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, पानी निकलने की नालियाँ नहीं। लिव 10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000 के करीब रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वे यहाँ 30 वर्षों से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा के, बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिस राशन कार्ड से उन्हें अनाज खरीदने में मदद मिलती है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, भोजन जो है वो ज़्यादा आवश्यक है पहचान से। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं और बिस्तर पर सोने के लिए बिना खाली पेट न रह करके खाना खा के जा सकते हैं, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स देन दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय अपने घर से, जहाँ से हम भाग के आए, जहाँ पे हमें कोई अनाज ही नहीं मिलता था। से ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए एक महिला ने कहा। मैंने यास जब वाई दे लेफ्ट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपने हरे भरे खेतों को, नदी वाले इलाके को छोड़ के यहाँ क्यों आ गए। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वे अपने टेंट वहीं लगा लेते हैं, उनका चलता फिरता घर कहलाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे इसी में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो हमारे जीवन यापन में हमारे सहयोगी बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में रहने का मतलब है कचरा बीनना।
थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, और वर्षों से अब एक कला के रूप में डेवलप हो गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए सोने जैसा है। इट इज देयर डेली ब्रेड, इनकी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इसी कारण इनको एक छत मिली हुई है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, यद्यप कि अगर वो छत टपक ही रही हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत कुछ है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, इवन ए 10 रुपी नोट, मुझे कभी कभी रुपये भी मिलते हैं कचरे में, 10 रुपए के नोट। साहब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, साहब कहता है उसकी आंखों में चमक है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। और जब कभी भी आपको कचरे में एक दो सिक्के मिल जाएं तो आप कचरा खंगालना कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहां और मिलने की उम्मीद होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कचरे का मतलब कुछ और है जो उनके माता पिता के लिए है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह आश्चर्यों में लिपटा हुआ है, क्योंकि उन्हें सिक्के मिलने की संभावना है। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये जीवन यापन का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक शीतकाल सुबह में मैंने साहब को पड़ोस के ही क्लब के गेट पर खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, दो युवा व्यक्तियों को देख रहा था, सफेद कपड़े पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं ये खेल बहुत पसंद करता हूँ। ही हम्स, वो कहता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उसे यहाँ खड़े होकर के देखना में बहुत संतुष्टि मिलती है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और जब यहाँ कोई नहीं होता तो मैं अंदर भी जाता हूँ। ही एडमिट्स, स्वीकारता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे यहाँ झूला भी झूलने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहब ने भी टेनिस शूज पहन रखे हैं जो बहुत अजीब भद्दे से रंगहीन शर्ट और शॉर्ट के ऊपर उसने पहन रखी है। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो समझाते हुए कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वास्तविकता यह है कि किसी संपन्न परिवार के बच्चे का फेंका हुआ जूता है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, शायद उसने उसको पहनने से मना कर दिया। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, इवन शूज, जो नंगे पैर चलता था, तो इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, और छेद वाला जूता भी उसे सपने के पूरे होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस खेल को इतने ध्यान से लगाव से वो देख रहा है वो उसकी पहुंच के बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहेब जो है मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, कहता है सड़क के नीचे मैं एक कप चाय की दुकान में काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए उसने कहा। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और पूरा खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम्हें यह काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा उसके चेहरे पर जो बचपन का निश्चल निर्दोष भाव होता है वो नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, ये स्टील का कैनिस्टर भारी प्रतीत हो रहा था, बजाय कि वो कचरा बीनने वाला जो प्लास्टिक का बैग वो कंधे पर उठा के चलता था, जिसे बड़े आराम से लेके चलता था, ये कैनिस्टर भारी लग रहा था। द बैग वॉज हिज, ये बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये जो कैनिस्टर उठा के चल रहा है ये उस चाय वाले का है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। Description of story 2. The second boy was Mukesh,
who belonged to a family of bangle makers in Firozabad. The boy had a dream of becoming a car mechanic. On the contrary, his family was traditionally engaged in bangle making, although the profession harmed them physically and they hardly earned any money out of it. Still, no one dared to dream of doing something else due to the fear of the police and the middlemen. The family elders were content that other than teaching the art of bangle making to their children, they had been able to build them a house to live in. The boy wanted to be a car mechanic. Cars were all that Mukesh had seen on the roads of his town, and so he could not dream any further. I want to drive a car. मुकेश insists on being his own master. मुकेश अपनी मर्जी का काम करना चाहता है. I will be a motor mechanic. मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. He announces, वो कहता है. Do you know anything about cars? I asked. मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है? I will learn to drive a car. मैं कार चलाना सीख लूंगा. He answers. वो जवाब देता है. Looking straight into my eyes. मेरी आंखों में सीधी नजरें गड़ाए हुए देखते हुए वो कहता है. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad. उसका जो सपना है वो इंद्रधनुषी सतरंगी सपनों के जैसा उसकी आंखों में दिखाई देता है. फिरोजाबाद सिटी के धूल भरी सड़कों के बीच जो शहर बैंगल्स के लिए मशहूर है. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. प्रत्येक दूसरा परिवार जो फिरोजाबाद में है वो इसी चूड़ी बनाने वाले काम में लगा हुआ है. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces. और ये सेंटर है भारत में. ये जिला जो है ये ग्लास के उद्योग के लिए, जहां तमाम परिवार इसी काम से जुड़े हुए हैं, जो भट्टियों के सामने बैठे हुए वेल्डिंग का कार्य करते हैं, ग्लास के बैंगल्स बनाते हैं सभी महिलाओं के लिए. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स. इनमें से किसी को नहीं मालूम कि यह अवैध है बच्चों का काम करना ग्लास फर्नेसेस में इतने उच्च तापमान के बीच में. इन डिंगी सेल्स, छोटे छोटे कमरों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जिसमें न प्रकाश है न हवा है. दैट द लॉ, जो कानून है, इफ इनफोर्स could get him and all those 20,000 children out of their hot furnaces where they slogged their daylight hours. और अगर ये कानून को लागू किया जाए तो सारे बच्चे वहां से निकल करके बाहर आए जो वैसे गर्म भट्टियों के सामने अपने पूरे दिन को बिता रहे हैं. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अक्सर वो अपने आंखों की रोशनी भी खो देते हैं. मुकेश आईज बीइंग एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. मुकेश की आंखों में चमक आ जाती जब मैं उसे घर जाने के लिए कहती हूँ. वो कहता है हाँ चलिए. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, जिसे बड़े गर्व के साथ कहता है कि हाँ मेरा मकान फिर से बन रहा है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम गलियों से गुजरते हुए, चोक्ड विद गार्बेज, जिसमें तमाम कचरे से भरा हुआ. पास्ट होम्स दैट रिमेन, हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, गिरती हुई दीवालों के बीच से होते हुए एक पुराने दरवाजे के पास पहुंचे. नो विंडोज, जिसमें कोई खिड़की नहीं. क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जिसमें परिवार भी रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं. को एग्जिस्टिंग इन ए प्रिम्बल स्टेट, बड़ी ही बुरी स्थिति में एक साथ निवास कर रहे हैं. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. ऐसे ही एक घर के सामने वो खड़ा होता है, बैंक से वुबली आयरन डोर विथ हिज फुट, और पैर से उस पुराने से दरवाजे जो सिकड़ी लगी हुई थी उसको खोलता है. एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोल देता है. वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधे बने हुए हिस्से में पहुंचते हैं. इन वन पार्ट ऑफ इट थैश्ड विद डेड ग्रास, एक हिस्से में जिसे सूखी घास से उसके ऊपर छत बनाई गई थी. इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, और एक स्टोव के ऊपर एक बड़ा सा वेसल बर्तन रख करके उसमें स्पिनेच, ये पालक की पत्तियां उसमें रखी गई थी. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और जमीन पर
बड़े से एल्युमिनियम की प्लेट में एंड मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और भी कटी हुई सब्जियां रखी थीं। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक दुबली पतली कमजोर सी महिला पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है, फिर भी मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश की बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, अभी उसकी ज्यादा उम्र नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, अभी से उसे सम्मान मिलना शुरू हो गया। बहू का, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, तीन व्यक्तियों की इंचार्ज है। हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. और जब भी कोई घर का बुजुर्ग आता है, तुरंत वो शीघ्रता से पीछे चली जाती है, जो टूटी हुई दीवार के पीछे, और अपने मुंह को, चेहरे को ढक लेती है, पर्दा कर लेती है। एज कस्टम डिमांड, जैसी कि परंपरा है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। बहुओं को पुरुष, बुजुर्ग जो पुरुष हैं, उनके सामने पर्दा करके रखना पड़ता है, घूंघट निकाल के रहना पड़ता। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, और इस मामले में जो बुजुर्ग हैं वो कुपोषित चूड़ी निर्माता है, मुकेश के पिता। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, वर्षों की कठोर मेहनत के बाद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले दर्जी का काम किया उन्होंने, देन ए बैंगल मेकर, फिर अब चूड़ी बनाने का काम। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, वो मकान का निर्माण कराने में, पुनर्निर्माण कराने में फेल रहे, असफल रहे। वो असफल रहे अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, केवल इतना ही किया, जो कुछ भी वो जानते थे उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि अरे ये तो कर्म है, यही भाग्य है। Who has washed her own husband go blind dust from polishing the glass of bangles, जिन्होंने देखा था उनका खुद के पति यही काम करते करते अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, अरे जो ईश्वर ने जो भाग्य बना दिया, क्या उसको हम उसको बदल सकते हैं? सी इम्प्लाइज, वो कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों के घर में जन्म लिया। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा सिवा चूड़ियों के। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, बरामदे में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, सभी दूसरे बरामदों में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर की सभी सड़कों पर यही देखा। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का ढेर। सनी, गोल्ड, पैडी, ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, सभी रंगों की चूड़ियां। lie in mounds in unkempt yards are piled on four-wheeled handtop, जो पड़े हुए हैं बरामदों में, 4 पहिए वाले ठेले पर। पुश्ड बाय यंग मैन along the narrow lanes of the shanty town, जो युवा व्यक्ति जो है जिसे धक्का दे करके फिरोजाबाद के सड़कों की गलियों में घूमते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और अंधेरे उस झोपड़ी में, उस कमरे में जहाँ पे डिबरी जल रही है, सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, जहाँ पर लड़के लड़कियां बैठे हुए अपने माता पिता के साथ। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, जहाँ इस रंग वाले चूड़ियों को गोलाकार आकार दे रहे हैं, उन्हें जोड़ रहे हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, उनकी आंखों को अंधेरे में ही काम करने की आदत पड़ चुकी है बजाय कि प्रकाश में। That is why they often end up losing their eyesight, और यही कारण है कि वे अपनी आईसाइट को जल्दी खो देते हैं। Before they become adults, इसके पहले कि वो वयस्क हों। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता जो पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई, सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन, एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी हुई। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, चूड़ियों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे सिलाई मशीन की सुई चलती है, इतनी शीघ्रता से। आई वंडर
इफ शी नोज ऑफ सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, मुझे लगता है क्या इसे इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में, इसके महत्व के बारे में पता है। शी हेल्प्स मी, जिसको बनाने में ये मदद कर रही है। इट सिंबलाइजेज इन इंडियन वुमेन सुहाग, और ये चूड़ियां भारतीय महिलाओं का सुहाग की निशानी है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, विवाह में शुभ है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, और एक दिन इसे भी यही चूड़ियां पहन करके, लाल साड़ी की घूंघट में, हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, उसके हाथों में मेहंदी, लाल मेहंदी का कलर दिखेगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और ये लाल चूड़ियां इसकी कलाइयों में दिखेंगी, पहनेगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, और दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, उसी बुजुर्ग महिला की तरह जो वर्षों पहले दुल्हन बनी थी, शादी विवाह हुआ था जिसका। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में, कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो कहती है कि एक वक्त का भी खाना ठीक से नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ऐसी आवाज में जिसमें कोई खुशी नहीं थी। सी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में पेट भर खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, और यही उसकी कमाई है। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, सेज, उसका पति जिसकी दाढ़ी है, बूढ़े आदमी, वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे इन चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने इतना ही किया कि घर को, परिवार के सदस्यों को रहने के लिए घर बनाया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसे सुनकर के ऐसा लगता है, आश्चर्य होता है कि क्या उसने अपने जीवन में कुछ अचीव प्राप्ति कर ली है जो दूसरे नहीं कर पाते। क्या सभी लोग मकान बना पाते हैं? ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यही चूड़ी बनाने का कार्य करने का अलावा और कोई नहीं। नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, पर्याप्त खाना भी खाने के लिए नहीं है। यहाँ के सभी घरों में यही स्थिति है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, ये युवा व्यक्ति अपने बुजुर्गों के ऊपर रोना रोते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ बहुत कम बदला है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद शहर में इतने वर्षों की कठोर मेहनत के बाद, पसीना बहाने के बाद, जितने भी कोशिश की गई, उनके सपने देखने की योग्यता भी समाप्त हो गई है। Why not organize yourself into a cooperative, अपने आप को आप लोगों ने कोऑपरेटिव के रूप तौर पे क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, मैंने एक युवा व्यक्ति के समूह से पूछा जो ऐसे ही बिचौलियों के बीच में फंस गए हैं, जिन्होंने उनके माता पिता को अपने जाल में फंसाया, उनके पूर्वजों को अपने जाल में फंसाया। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, अगर हम समूह में भी हो जाएं तो हम लोगों को पुलिस परेशान करेगी। Beaten and dragged to jail, मारेगी, जेल में डाल देगी। For doing something illegal, कुछ हम अवैध काम कर रहे हैं इसके लिए। जैसे वे कहते हैं, There is no leader among them, उनके बीच में कोई उनका नेता नहीं है। No one who could help them see things differently, कोई ऐसा नहीं है जो चीज़ों को अलग तरीके से देख सके, समझ सके। Their fathers are as tired as they are, उनके पिता भी उतने ही थक चुके हैं जितने कि वे। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed, वे बातें करते हैं, अंतहीन बातें, जो गरीबी से शुरू होती है, लालच तक, अन्याय तक। Listening to them, उन्हें सुनते हुए I see two distinct words, दो शब्द मैं सुनती हूँ। One of the family caught in a web of poverty,
एक तो गरीबी के जाल में भी फंस चुके हैं, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, जिस जाति बिरादरी में उनका जन्म हुआ, इन्हीं बैंगल मेकर्स के फैमिली में। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरा जो ये जो साहूकारों का एक समूह है, द मिडिल मैन, ये बिचौलिए, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, ये अफसरशाह, ये राजनीतिक लोग, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। सभी लोगों ने मिलकर के एक ऐसा बोझ बच्चे के सर पे रख दिया है जिसे वो उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज ए नेचुरली एज हिज फादर, और उसके पहले जब तक वो जानकार होता है, वो अपने पिता के इसी काम को स्वीकार कर लेता है, और जो कर्ज पिता ने लिया उस चीज को वो स्वीकार कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ और कार्य करना का मतलब है कि साहस करना, इतनी हिम्मत उनके अंदर नहीं होती। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उनके इस पालन पोषण का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। जब मैं मुकेश की आंखों में ये एक डेयरिंग देखती हूँ, मुझे प्रसन्नता होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वो एक गैराज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज जो है उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, लेकिन वो कहता है मैं चल के जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? ही सडनली साइलेंट, वो अचानक से शांत हो जाता है। नो, ही सेज, कहा नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर देखते हुए वो कहता है, इन स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट एट टर्न इनटू रिग्रेट, और धीमे से कहता है, एक शर्मसार, एक हतोत्साह उसके अंदर मन में दिखाई देता है, जो भी पछतावे के रूप में नहीं बदला है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town। वो कार चलाने का सपना देख करके ही संतुष्ट है जो अपने शहर की सड़कों पर वो देखता है। Few airplanes fly over फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर के ऊपर से कुछ ही एयरप्लेन्स उड़ते हैं। Theme of the lesson highlights the plight of street children forced into labor early in life and are denied the opportunity of schooling, the carelessness of society and the political class towards the sufferings of the poor. Here are the vocabulary. Dear students, look this vocabulary and find its meaning. Thank you for watching